Assalamu alaikum everyone, this is Aisha Aslam and today in this video we will be discussing acute epiglottitis. First of all we will see कि इस नाम से हमें तीन क्या चीज़ें पता चल रही हैं। एक हमें पता चल रहा है कि इन्फेक्शन इज एक्यूट, यानी कि ये सडन होगी और सिवियर होगी। ठीक है, यही होती है ना एक्यूट इन्फेक्शंस। और हमें क्या पता चल रहा है फ्रॉम द वर्ड आइटिस we know that it will be some sort of an inflammation. अब इन्फ्लेमेशन किस जगह की होगी ये भी हमें नाम में ही गिवन है कि वो जगह होगी, एक तो होगी एपिग्लॉटिस और उस एपिग्लॉटिस के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। अब सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, एक आता है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स जो कनेक्ट कर रहे होते हैं एपिग्लॉटिस को रेटिनॉइड्स के साथ। तो अगर एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो देयर आर चांसेस के साथ रेटिनॉइड्स भी इन्वॉल्व हो जाएं। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि acute epiglottitis is an acute inflammatory infection of the epiglottis and the surrounding structures which include epiglottic folds and the retinoids. अब इन्फ्लेमेशन जब भी किसी जगह की होती है उधर क्या होता है, एक तो ये होता है कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स दैट एरिया इंक्रीजेस ताकि सेलुलर रिस्पॉन्स ज़्यादा हो। तो उससे क्या होगा वो कि उस जगह पे एडीमा हो जाएगा। ठीक है, अब एक पैसेज वे है, ये एक हमारा एयर पैसेज है, नीचे फॉर एग्जांपल ये लेरिंग्स है और उसके नीचे ट्रेकिया है, इसके ऊपर इधर पड़ा होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, अगर इस एपिग्लॉटिस की हो रही है इन्फ्लेमेशन यानी कि ये साइज में बढ़ता जा रहा है और उधर क्योंकि उधर एडीमा हो रहा है एंड ऑल द अंडरलाइंग रीजन जो हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये पैसेज वे के चांसेस हैं कि ये ब्लॉक हो जाए। ठीक है, सो दिस इन्फ्लेमेशन may cause edema which can result in obstruction of the airway. तो नाम से हमें क्या पता चला कि जो acute epiglottitis है, it is an acute disease. Which type of disease? An inflammatory disease of which area of the epiglottis and the surrounding structures which include the epiglottic folds and the retinoids. Coming towards the etiology of this infection, etiology में हम क्या चीज, एक चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि it is a serious infection. We have to take it seriously because it has serious consequences. दूसरी चीज हम etiology में क्या पढ़ते हैं कि causative agent क्या होगा। अब this infection या this inflammation can be bacterial or viral. Not this, any inflammation can be bacterial or viral. This acute epiglottitis is a bacterial inflammatory disease. ठीक है, और बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व्स द एच इन्फ्लुएंजी बी वायरस, दैट इज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी वायरस। ठीक है, बी सॉरी बैक्टीरिया, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, एच इन्फ्लुएंजी बी बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, अगर ये बॉडी में आ जाए तो इट विल कॉज एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। अब सवाल आता है कि ये बच्चों को इन्फेक्ट करता है या बड़ों को इन्फेक्ट करता है, तो इट has a probability to infect both children and adults. लेकिन children में इसकी presence ज़्यादा है as compared to adults. There are more chances that it will infect the children than adults. And which children? Children aged 2 to 7 years. Now this is important to differentiate acute epiglottitis from acute laryngotracheobronchitis. I have already made a video on it. If you have watched it, it will help you. And if you have not, I would suggest you go and watch it. क्योंकि हमने, there is a question and it is important to differentiate between both the diseases. As yet, we have discussed two differences. This is a bacterial infection, while laryngotracheobronchitis is a viral infection. It infects children, most probably age 2 to 7 years, and acute laryngotracheobronchitis, it infects children from 3 months to 3 years. So it helps us to differentiate in scenarios and in MCQs. So I would suggest you also go and watch that video. So in acute epiglottitis, the etiology will be that it is a serious disease, bacterial infection, which may infect children or adults. Coming towards the clinical features, we have discussed that this is an epiglottis which
forms a covering of the airway. ठीक है, इसके दो फंक्शंस होते हैं. एक तो ये कि जब ये swallow कर रहे हैं तो फूड बोलस जब ओरल कैविटी से इसोफेगस में जाना होता है तो उसके बीच में पड़ा होता है लेरिंग्स और ट्रेकिया. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग swallowing epiglottis covers the larynx so that the food directly enters into the esophagus and not the air passages. ठीक है. And the second function is that when we are not swallowing, the epiglottis comes in the vertical position, that is the airway open, so that normal breathing can continue. So when we discuss the inflammation of the epiglottis, so there may be two possibilities. One of which is that it may inflame to an extent that it may obstruct the air passages. कि इतना ये इन्फ्लेम होकर बड़ा हो जाए कि ये एयर पैसेज को ब्लॉक कर दे. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब ये बड़ा हुआ है तो जब वो हम खाना स्वॉलो करें तो वो उसकी स्वॉलोइंग में हिंड्रेंस पैदा करें. ठीक है, यानी कि इट कैन अफेक्ट द पाथवे ऑफ बोथ फूड एंड एयर. ऑलराइट, सो व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द क्लिनिकल फीचर्स वी विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड. First thing in clinical features is that it will have abrupt onset of symptoms because we have discussed it is a serious acute infection. Not only abrupt onset, it also has a rapid progression. That is, the symptoms rapidly progress in their severity and towards their complications. Now, what happens is, as it is a bacterial infection, we can straightforward say that the patient will have fever. So the fever will range up to 40 degrees Celsius or maybe more. This is also another difference between acute epiglottitis and acute laryngotracheobronchitis. In acute epiglottitis, the fever may exceed 40 degrees Celsius. Other set of symptoms may differentiate between adults and children. In adults, the adults will come with the complaints of dysphagia and sore throat. अब एपिग्लॉटिस पड़ा हुआ किस एरिया में है? इन द फेरिंग्स. ठीक है, सो इसके साथ ही जब इन्फेक्शन होगी तो पेशेंट विल से कि मेरे गले में दर्द है और मैं जब निगलने लगता हूँ, नवाला निगलने लगता हूँ तो मुझे मुश्किल होती है. ठीक है, अब देखें ये चीज एडल्ट्स में क्यों आ रही है? हो ये चिल्ड्रन में भी रहा होगा, लेकिन चिल्ड्रन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ डिस्फेजिया. ठीक है, दे मे नॉट बी एबल टू कंप्लेन ऑफ डिस्फेजिया कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते होंगे. शायद देयर कैन बी प्रोबेबिलिटी कि मुझसे खाना निगलने नहीं हो रहा. एंड सेकेंडली चिल्ड्रन, मतलब 2 से 3 साल का बच्चा ज्यादातर लिक्विड डाइट लेता है ना, और यहाँ बहुत चबा के खाता है या उसको बहुत चबा के दिया जाता है, तो उसकी डिस्फेजिया की कंप्लेन थोड़ी सी कम होगी. चिल्ड्रन में क्या कंप्लेन्स आएंगी? डिस्निया. ठीक है, डिस्निया क्या होगा कि उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, यानी कि उसका एयर पैसेज वे ब्लॉक हो रहा है. तो उसको ये होगा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, बच्चे को सांस नहीं आ रहा, बच्चा बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, और जब वो सांस लेता है तो एक आवाज पैदा करता है जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं स्ट्राइडर. अब होता क्या है कि जब एक एयर पैसेज वे में एयर नॉर्मली जाती है, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से नोज से एयर जा रही है नीचे, तो जब वो नीचे जा रही है और अब बीच में एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से हट के एक बड़े स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? उस एयर की नॉर्मल पैसेज वे को टर्बुलेंट फ्लो में कर देगा. जब ये टर्बुलेंट फ्लो विल स्ट्राइक द वोकल कॉर्ड्स एंड ड्यू टू द टर्बुलेंस a sound will be produced which we can hear on auscultation as well and without any stethoscope as well in severe cases, and we name it as stridor. So the children, in the clinical features, the children usually present with dyspnea and stridor, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनकी चीजें हर चीज छोटी है, उनको सांस लेने में ज्यादा मसला होगा. While the adults will present with dysphagia and sore throat. ठीक है, they will be the early symptoms. Now, as we have discussed that epiglottis will affect the air passage and the food passage. तो air passage में हमारे पास complaints आ गई dyspnea and stridor, and food passage में आ गया dysphagia, and due to inflammation the patients may complain of sore throat. ठीक है, and because it is a bacterial infection, the patient will also complain of fever which may exceed 40 degrees.
Another important thing is 4Ds in acute epiglottitis. अब इसमें से हम दो डिस्कस कर चुके हैं कि the patient will present with dysphagia. डिस्फेजिया के साथ क्या होगा, जब उसको swallowing में मसला होगा, अब हम देखें अनकॉन्शियसली हम अपना सारा सलाइवा जितना प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको कॉन्स्टेंटली swallow करते रहते हैं. तो जब dysphagia होगा, the patient won't be able to swallow the saliva, food and as well as the saliva. The second D will be drooling, कि सलाइवा मुंह से बाहर आने लग जाएगा, क्योंकि सलाइवा की प्रोडक्शन तो उतनी ही हो रही है, लेकिन ड्यू टू डिस्फेजिया इट विल कैन कम आउट ऑफ द माउथ व्हिच विल बी कॉलिंग एज ड्रूलिंग. और साथ क्योंकि ये एयर पैसेजेस को इफेक्ट करे, सो द पेशेंट में प्रेजेंट विद डिस्फोनिया. डिस्फोनिया का होगा क्या होता है, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन वॉइस प्रोडक्शन, कि जब एक नॉर्मल वोकल कॉर्ड से एयर में गुजरना था एक प्रॉपर लैमिनर फ्लो के साथ, बीच में आ गई ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो फ्लो हो गया टर्बुलेंट. ठीक है, इस टर्बुलेंट फ्लो की वजह से और आर्टिकुलेशन वगैरह हर चीज के मसले से डिस्फोनिया के साथ भी बंदा प्रेजेंट कर सकता है. और साथ द पेशेंट विल प्रेजेंट इन डिस्ट्रेस, बिकॉज ना उससे खाना खाया जा रहा है, ना उससे सांस लिया जा रहा है, थूक उसका बाहर आ रहा है, बोलने उससे हो नहीं रहा, साथ उसको फीवर है, सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद डिस्ट्रेस. दीज आर द 4 Ds ऑफ acute epiglottitis, so it is an easy way to remember the symptoms. Next, when we come to the examination, first of all we will be looking at the age of the patient. कि अगर बच्चा है 2 से 7 साल का, we suspect acute epiglottitis or maybe in adults as well. ठीक है, फीवर ले लिया, वो सारी चीजें तो सिम्टम्स हो गए. एग्जामिनेशन पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जामिनेशन करेंगे कि हम टंग डिप्रेस करेंगे और पेशेंट के मुंह में देखेंगे फेरिंग्स में. इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि डिस्फेजिया हो क्यों रहा है, कि उसको टॉन्सिलाइटिस है या क्या है. तो जब हम उसको डिप्रेस करेंगे तो हमें नजर आएगा एक बीफी रेड स्वॉलन एपिग्लॉटिस. ठीक है, एपिग्लॉटिस अब इतना बड़ा हुआ होगा कि जब हम सीधा देख रहे हैं तो वो टंग से भी ऊपर प्रोट्रूड कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टंग और एक ये नॉर्मल एपिग्लॉटिस पड़ा है और फूड यहाँ से छलांग मार के पीछे जाता है. अगर एपिग्लॉटाइटिस हुआ है तो शायद इसकी इन्फ्लेमेशन इतनी बड़ी हो कि रेडनेस के साथ हो गए, जब हम डायरेक्टली देखेंगे तो हमें टंग के ऊपर प्रोट्रूड करता हुआ नजर आए बीफी रेड या स्वॉलन एपिग्लॉटिस. सेकेंड एग्जामिनेशन क्या होती है थ्रोट की, इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी, जिसको हम कहते हैं आईडीएल. जब हम आईडीएल करते हैं, नॉर्मल आईडीएल करते हैं, तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है कि द एपिग्लॉटिस इज, ये एपिग्लॉटिस पड़ा होता है, ठीक है, और उसके नीचे ये वोकल कॉर्ड्स पड़े हुए हैं. ठीक है, ये हमें आइडियल में दो चीजें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि एपिग्लॉटिस और नीचे हमें वोकल कॉर्ड्स नजर आते हैं. अब ये है आइडियल ऑफ अ एक्यूट एपिग्लॉटाइटिस पेशेंट. ये देखें कि एपिग्लॉटिस इतना बड़ा स्वॉलन पड़ा हुआ है. ठीक है, दिस इज अ स्वॉलन ह्यूज एपिग्लॉटिस हमें नजर आएगा, और हमें उसमें क्या नजर आएगा, हमें उसमें एडिमा नजर आएगा और उसमें हमें कंजेशन नजर आएगी. So ideal पे we will be, when we will be seeing, we will find the findings क्या होंगी, edema and congestion of the epiglottis, जो हमें डायरेक्टली नजर आ जाएगा कि जब हमने टंग डिप्रेस करेंगे प्लस साथ मिरर डालेंगे और उसमें से देखेंगे तो it will be the ideal. ठीक है, लेकिन एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि ideal will be avoided in patients of acute epiglottitis. Why they will be avoided? It will be avoided to, so that we may not precipitate obstruction. ये ना हो कि एपिग्लॉटिस पहले ही बड़ा होके उस एरिया को ब्लॉक करे, साथ हम ऊपर एक शीशा डाल दें ताकि जो थोड़ा बहुत रास्ता था उसके पास एयर के पास जाने के लिए वो उस मिरर से ब्लॉक हो जाए. So that we may not precipitate obstruction, we avoid ideal. और अगर हमने करनी हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ओटी कंडीशंस में करें, यानी ऑपरेशन थिएटर में करें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो पेशेंट को फौरन से इंक्यूबेट किया जा सके. जैसे ये इस इमेज में भी दिस इज प्रोबेबली एन इंक्यूबेटेड पेशेंट. ठीक है, तीसरी जो एग्जामिनेशन होती है वो है लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे. लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे में हमें क्या नजर आएगा कि एपिग्लॉटिस विल बी स्वॉलन. ठीक है, अब इसमें देखें, ये हमें, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पॉइंटर क्योंकि पिक्चर्स में क्लियर नहीं आ रहा ये लोग. अब ये है, ये एपिग्लॉटिस हमें स्वॉलन नजर आएगा. ठीक है, अब इसमें हम क्या कहेंगे,
कि जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स में और नादरा में, हमें लगेगा कि बीच में एक थंब पड़ा हुआ है, कि एपिग्लॉटिस क्योंकि एक ओवल स्ट्रक्चर है और वो इतना बड़ा हो गया कि हमें लगेगा कि एक्सरे पे किसी ने अपना फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है या थंब प्रिंट लगाया हुआ है। इसको हम कहते हैं थंब साइन। This can be a very important differential MCQ of acute epiglottitis कि अगर कहीं पे thumb sign आए so we'll straightforward go to acute epiglottitis, ठीक है, as it is clear in this picture कि जब मैंने pointer नहीं था तो it was whitish in color। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये आप देखें कि एपिग्लॉटिस इज वाइट इन कलर, ठीक है, वाइटिश क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है ना, सॉफ्ट टिश्यू का की इमेज आ रही है वाइटिश और उसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, यानी कि नॉर्मली एक्सरे पे हमें इतना क्लियर एपिग्लॉटिस नजर नहीं आएगा, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि किसी ने अपना अंगूठा लगाया हुआ है, थंब लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं थंब साइन। तो ये हो गई 3 एग्जामिनेशन। सिंपल टंग डिप्रेशन, वी कैन सी अ बीफी रेड swollen epiglottis. On indirect laryngoscopy, you'll see edema and congestion of the epiglottis, but we will avoid it in normal OPDs so that we may not precipitate obstruction because already the air passage is narrowed and it may be carried out in the operation theater. In lateral soft tissue X-ray, we'll see a thumb sign because the soft tissue that is epiglottis will be swollen. Now, to conclude our topic, we will see the treatment. सबसे पहले हमने बात की थी that the infection is very severe, ठीक है। अब anything that involves blockage or obstruction of the airway is severe, ठीक है, because we want, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारा सांस घुट के हम मरें, ठीक है। So the patient कि उसको इतना हाई रिस्क है ऑब्स्ट्रक्शन का, तो वे फौरन से हम उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे सबसे पहले। दूसरी चीज, कॉजेटिव एजेंट इसका था बैक्टीरिया, तो हम उस बैक्टीरिया के खिलाफ फौरन से एंटीबायोटिक्स दे देंगे जिसमें आएंगी एम्पिसिलिन एंड 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, ठीक है। इनको हम देंगे IM और IV रूट से बिकॉज वी वोंट वेट, एंड क्लास 1 हम इसको IM और IV देंगे क्योंकि इतनी सीरियस इन्फेक्शन है, और साथ हम थ्रोट स्वैब और कल्चर भेजेंगे जरूर, बट वी वोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ कल्चर्स, ठीक है, क्योंकि अगर कल्चर में आप देखें आराम से 3 या 4 दिन लग जाते हैं। अब 3-4 दिन अगर एपिग्लॉटिस इतना सिवियरली इन्फ्लेम करता जाएगा तो वैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो फौरन से IM या IV रूट से विल बी गिविंग एम्पिसिलिन और द 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स to subside the infection. Another risk factor was edema. To subside edema, to relieve edema, we will be giving steroids. Okay, and which steroids? It will be the hydrocortisone or dexamethasone. अब इन स्टेरॉइड्स को भी IV या IM रूट से देना है ताकि एडिमा फौरन से सबसाइड हो और कोई इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस मिनिमम हो जाए, ठीक है, ताकि पेशेंट क्योंकि है तो हॉस्पिटलाइज, तो ताकि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम हो जाए और एडिमा रिलीव हो जाए, इसके लिए हम फौरन से IV या IM रूट से स्टेरॉइड्स दे देंगे। 4th चीज क्या आएगी कि क्योंकि पेशेंट डिस्ट्रेस में है उसको हम हाइड्रेट करेंगे वाया द पैरेंटल फ्लूइड्स, यानी उसको ड्रिप्स वगैरह लगा के हाइड्रेट। उस पेशेंट को हम साथ हम क्या करेंगे, तो पेशेंट को हम देंगे ह्यूमिडिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन, कि क्योंकि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी है तो उसकी ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, और अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन इतनी सिवियर हो गई कि उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, so we will go for the intubation or tracheostomy. I hope this topic is clear and there are no questions, and if you have any questions you can ask in the comment box, and I would like that you give feedback on this new style of our video lectures. If you like the video, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much.